suddenly one character and everyone is taking notice of you. People are asking कि यार ये इस एक्टर का नाम क्या है, इस एक्टर से मैं मिलना चाहता हूँ. जैसे आपने मुझे बताया, जावेद साहब wanted to meet you as well, especially after watching the film. By the grace of God, Secret Superstar has happened. There's something which has created a mark, which has made a line. I'm not so hungry for films. I'm hungry for good work. Hi, this is Raj Arjun and you are watching Bollywood Hungama. Well, we have with us the new age Gabbar Singh. Yes, we're talking about Raj Arjun, and he's the father in Secret Superstar, the father who traumatizes with his mere sarcasm से भरी हुई उनकी जो आवाज़ में या फिर जिस तरीके से उनका पूरा कैरेक्टर है वो it stays with you, it just haunts you like anything. So it's as good as I think Gabbar Singh. So first of all, pleasure having you on Bollywood Hungama, Raj Arjun. Thank you. And you've been around for some time. You've worked in so many films, but suddenly one character and everyone is taking notice of you. People are asking कि यार ये इस एक्टर का नाम क्या है, इस एक्टर से मैं मिलना चाहता हूँ. जैसे आपने मुझे बताया, जावेद साहब wanted to meet you as well, especially after watching the film. How do you just react to it? That you've been around, you've worked before with big stars as well, with Akshay or Shah Rukh, but suddenly everyone is taking notice of you in a big way. Yeah, I'm actually humbled in a way. I'm honored, and more I'm meeting to industry people, more I'm becoming humble and all. And the way they are receiving me, the way they are taking me in their arms and all, it makes me realize that okay, now at least I was on the right path all this while and all. I want to tell you that you have given me a respect. You say Gabbar and all, but I, with due respect, I cannot touch his caliber and all. With due respect, he was a legend. And no, I'm saying new age people, because you know the idea. I'm sorry to interrupt you, but the idea for any villain or any negative character, he's not a villain exactly. He has his circumstances. It's very realistic. Obviously, what he does is really wrong and bad as well. But the fact is that it sends shivers down the spine, like of people who are watching it. Very true. When that scene takes place, when you're actually just slapping your wife, and that the fact that a man can taken it for granted that a woman is meant to be hit upon just because maybe she has made a mistake that he thinks is in itself, it is so gory and gruesome that it makes you feel revolted. आदमी का दिल चाहता है कि यार उसमें सिनेमा उसमें उसके अंदर घुस जाओ यार. I completely agree with you, and then it is like the way people are living in this society. What happens is that they don't see themselves as a villain, and it is not a question for them to be idealized or to take or कि औरत को नीचा देखें या वो देखें. उनके लिए ना ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करते. औरत भी उनके लिए कई बार एग्जिस्ट ही नहीं करती है. उनके जीवन की जो शैली होती है, जीने का जो तरीका होता है, वो ऐसा ही होता है. वो पैदा ही ऐसे हुए हैं. सवाल जवाब, एक्सक्यूजेस, एक्सप्लेनेशन उनके लिए वर्क नहीं करते हैं. क्योंकि जब औरत सवाल पे आ जाएगी, सवाल करने पे आ जाएगी या जवाब मांगने पे आ जाएगी, तो उनको पता है कि ये जवाब दे नहीं पाएंगे. किस बराबरी की बात करते हैं, जवाब तो है नहीं उनके पास. तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि चुप रहो, चुप करो उसको, आर्ग्यूमेंट करो मत, बात करो मत. तो उसी साइकोलॉजी को पकड़ने की ज़रूरत होती है. और ये हम हर दूसरे घर में देख ही रहे हैं. आपके चाचा, मामा, ताया, भाई, भतीजा, कोई ना कोई आपको हर फैमिली में ऐसा दिख जाता है कहीं ना कहीं, जो कई बार जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन ये चला आ रहा है सदियों से, वो चला ही आ रहा है. और वो जानबूझ के उसका निरादर नहीं कर रहा है, जानबूझ के उसका अपमान नहीं कर रहा है, पर वो जीवन शैली बन गई है. मतलब वो फीमेल्स इतनी इनइम्पॉर्टेंट बन गई हैं उनके लिए कि उनके लिए वो मैटर नहीं करती है, उनके मन में सवाल नहीं है. तो जब मुझे ये करना था तो मुझे ये इस तरीके से नहीं करना था. जैसा कि आपने बहुत अभी सही बात कही कि वो विलन थोड़ी है, या विलन, मैंने विलन बनने की कोशिश नहीं की. ये तो मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है, मेरी आइडियोलॉजी है ना, मैं इस पर बिलीव करता हूँ. अब उसमें मैं आपको विलन लग रहा हूँ तो लगूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ. मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ कि मैंने जो किया सही किया फिल्म में. हाँ नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हर किसी का एक नज़रिया होता है. लेकिन obviously when a lot of people if they feel certain things, obviously वो भी एक सच्चाई, वो बिल्कुल सही बात है. सच्चाई तो वो it keeps on varying है. हाँ नहीं, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और वो बहुत सुकून दे रहा है कि मैं वो पोर्ट्रे कर पाया और वो लोगों तक पहुंच रहा है. वो साइमल्टेनियसली मुझे नफरत भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली प्यार भी करते हैं. बिल्कुल भाई, एज एन एक्टर दे विल रियली would want to just take note of you in a big way as well. And there are so many things, like
इवन जब वो फिजिकली व्हेन ही इज नॉट बीइंग अब्यूजिव, द फैक्ट इज दैट वो अपनी जुमलों से कि इस घर में खाना मिलेगा, हाँ वो मार डालता पानी है। मिलेगा, अब वो सिर्फ एक शब्द पानी इस घर में पानी मिलेगा। मिलेगा, वो कैसी बात है? पानी दे दो हाँ। एक तरीका होता है, अरे इस घर में पानी मिलेगा अपने आप में एक हिस्ट्री बयां कर देता है। राइट। और अगर बेटा से चाय गिर जाए तो उसको हाथ नहीं उठाता, वो हाथ आते आते भी रुक हाँ, वो जाता रुक जाता है। है। वो वही तो साइकोलॉजी बता रहा है ना उस मेल शॉविनिस्ट। बट वो आपने सही कहा कि दैट उसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। जब नौकरी मिल जाती है, जिस तरीके से मिठाई लेके आता है, तो वो एक उसके अंदर नरमी है। हाँ वो आपने देखा इट बिकम्स ह्यूमन। कि वहाँ पर वो उस तरह से नहीं जा रहा है कि मैं इसको मारूं या कुछ हाँ, करूं, भाई मैं शादी becomes करवा human। दूंगा, मैं शादी करवा दूंगा। हाँ। तो वो जीवन जीने का कई लोगों का ये तरीका होता है कि एक माइंड सेट है कि बच्ची बड़ी होगी, ये पढ़ेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ उठेगी, यहाँ खाएगी और शादी करके चली जाएगी। बस इसके ज़्यादा न मुझसे बात करो, न मुझसे पूछो, न ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनो, न ज़्यादा सवाल जवाब हाँ, करो। सवाल जवाब। अगर सवाल जवाब किए कि पापा क्यों नहीं, अब्बा क्यों नहीं करूँगी, तो जवाब कहाँ है भाई? सही बात। तो जवाब नहीं है तो हाथ उठेगा। हाथ तो तभी उठेगा ना जब आपके पास जवाब नहीं। गुस्सा तभी उठेगा आएगा ना जब आपके पास जवाब नहीं है, अदरवाइज गुस्सा आने का कोई रीज़न नहीं है। तो वो रीजनिंग पैदा करने की, तो वो नहीं, यू नो आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, मैंने 2 बार पिक्चर देखी है। एक बार तो मैंने प्रेस शो में देखी थी, एंड फिर उसके बाद फिर मैंने आई सॉ इट विद माय फैमिली। मतलब ये होता है कि जब तक ये शख्स घर में नहीं है, गाने आने अपने हैं, एज एन ऑडियंस अपन खुश हैं। जब वो आता है बाहर से कुछ दिनों के बाद, यार अब फिर से मूड खराब होगा। मतलब आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, yes. एंड इफ अ मूवी कैन डू दैट टू यू, आई थिंक दैट मूवी does create विल that लिव, magic, विल लिव एक्चुअली। और वो कुछ दिनों के बाद जब आता है तो फिर उसके बाद फिर उसमें ये होता है कि भाई जैसे गलती तुम्हारी, मैंने गलती कर दी, वैसे बाकी लोग तो नहीं करते। आई एम नॉट गिविंग अवे द एंटायर थिंग बिकॉज द मूवी इज स्टिल रनिंग इन थिएटर, बट इट्स वंडरफुल एक्चुअली कि दैट उसका नेचुरली उसकी ज़बान जो है वो तल्ख है, और उसमें ये है कि वो तुरशी उसमें रहती है, वो कुछ ना कुछ जो बोलूंगा तो उसमें ऐसे ही बोलूंगा आग कि ही लगेगी उसमें, बस उसमें ये आग कि ही दिल में लगेगी। उतर जाएगा, खंजर उतर जाएगा। दिल में उतरेगी नहीं, खंजर उतरेगा दिल के अंदर, व्हिच इज फैबुलस एक्चुअली। थैंक यू। सिर्फ देखिए क्या, एक तो ये है कि आपको डायलॉग्स मिल जाएं, लेकिन वो एक बोलने का अंदाज भी होता है ना, मतलब बोलने में जो एक सार्केज्म है या फिर एक जहर से बुझी हुई जो एक वो है, या फिर जैसे आपने बताया कि बैक स्टोरी उसकी है, सो दैट कम्स अक्रॉस वंडरफुली वेल। हाँ वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टर को करने के लिए, क्योंकि वही हेल्प करता है। क्योंकि कई बार लाइन्स होती नहीं है, डायलॉग्स होते नहीं है, तो आपका ऑरा बोलना चाहिए ना। वो बात क्या करेगा अगर आपका वो अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसको जिया नहीं, तो वो कैसे रिएक्ट होगा, कैसे यहाँ से आएगा। तो वो एक चीज़ है। ये बात आपने जो बोली, मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जैसे मैं नहीं हूँ तो वो चाहते हैं नहीं आए, लेकिन मुझे कई लोगों ने ये बोला कि जब आप नहीं हो तो भी होते हुए दिखते हो उसमें, तब भी हमें डर लगता है कि अभी आ जाएगा तो नहीं आए वो, वही या गब्बर यहाँ सिंह पर वाली दिख बात रहा है है, ना वो कि वाली बात है। तो वो मुझे 50-50 सुनने में बहुत गुदगुदी भी हो रही है। अब मुझे बहुत अच्छा, उस टाइम पे ये बहुत पेनफुल जर्नी थी मेरे लिए, वाइल मेकिंग इट वॉज अ पेनफुल जर्नी, थॉरो पेनफुल जर्नी। तो लेकिन अब मैं उसको बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब लेमैन हो गया हूँ, अब मैं उसको देख पा रहा हूँ, तो अब मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और अब जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिल रहा है कि जैसे जावेद साहब और बहुत सारे और हमारे इंडस्ट्री के इंसाइडर्स जो हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ एक थोड़ा सा कुछ मामला तार हिला है गिटार का। No, absolutely. And देखिए क्या होता है ना, that say since we are in the industry and we watch a lot of films, तो हमें मतलब मुझे कोई एस्पिरेशन ये नहीं है कि दैट पर्दे के पीछे जाना है या फिर कैमरे के पीछे जाना है, वो मेरा बिल्कुल भी कोई एस्पिरेशन नहीं है। लेकिन क्या होता है, फिर भी आप एक बहुत सी चीज़ें अगर आप देखते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो एक आपको एक चीज़ें कुछ सर्टेन तरीके से समझ में आती हैं, एंड एक सर्टेन कहीं एक सुर समझ में आता है। तो उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको लगती है, वो ये होती है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैरेक्टर के लिए। जब गिटार भी तोड़ रहा है वो आदमी, तो गिटार वो ऐसे तोड़ रहा है कि ऐसे कि मतलब कोई खंबा उखाड़ रहा है, गिटार नहीं, उसके तार नहीं तोड़ रहा है, वो खंबा उखाड़ रहा है। वो बॉडी लैंग्वेज है, वो एंगर है, वो तो वो भी अपने आप में इट्स लाइक यू नो इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। कि वो गिटार के तार नहीं टूट रहे हैं, वो आपके दिल के तार टूट रहे हैं। तो वो जिस तरीके से तोड़ रहा है बेरहमी से, वो सही कह रहे हो आप, क्योंकि गिटार उसके सपने से जुड़ा हुआ है। तो मैं उसको जख्मी गिटार को नहीं कर रहा हूँ, तो गिटार नहीं, उसके सपनों को तोड़ रहा हूँ, उसके जीवन को हिला रहा हूँ मैं, वही मेरा मोट। और वो भी कूल होके, कंपोज हो गए। यही चीज़ मैं वैसे करूँ तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वो उस इनर साइकोलॉजी पे काफ़ी काम करके मैंने ये डिसाइड किया था कि हर वो चीज़ जो इसको तकलीफ़ दे, इसको और मेरी बीवी को, वही वर्क करेगी। इसलिए तो जब मुझे ये मिला था काम, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको कोशिश ये करूँगा, पूरी कोशिश ये करूँगा कि बिना कुछ किए इम्पैक्ट पैदा करूँ, बिना कुछ किए, क्योंकि करके तो इम्पैक्ट करना वो मेरा फोटे भी है।
Absolutely. करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना कुछ करे करूँ तो बात है। Absolutely, absolutely. And when I was reading about you, I just came to know one thing, which I found very interesting. That in the movie that you're making sure that your daughter does not fulfill any of the dreams, and you just want her to get married at 16 or 15 whatsoever. But in real life, your daughter is I think she's 13 years of age, and she is a very talented actress. And since the age of I think 1.5 2 years. She's been part of advertisements, she's been part of several films down south, and she's a known name as far as she herself is concerned, which is a contrast that in picture में वो कुछ दिख रहे हैं, लेकिन in real life he is the mother. Yeah, Sara is a God gift which has been sent to me, and when there was a tough phase in my life when I was not getting work and all, when I will make you remember that you have interviewed me for Shabri. You were asking me now outside. That was the first interview of my life. Shabri didn't release for 7 years. So Sara is Shabri, okay, Shabri. okay. You interviewed me for that. That was the that first one, interview. I played lead role in that. I played Murad, Yes. opposite Isha Kopikar. Isha I was Kopikar, the one. yes. Yeah. Right. So Sara came in midway. God actually sent it her कि चलो भाई इसका कुछ हो नहीं रहा है तो मैं इसको बेटी भेजता हूँ. Then she took over. She started getting work and all opportunities and all, and that happened accidentally. I didn't go anywhere and all. कहीं कुछ किया ही नहीं उसका. एक कहीं मैं मॉल में घूम रहा था, किसी ने मुझे उसको गोदी में देख लिया. वहाँ से वो शुरू हुआ. तो वो ऐसा शुरू हुआ कि जो मेरा टफ टाइम था वो उसको पालने में, उसके साथ टाइम बिताने में वो निकल गया. By the grace of God, she is very big actually in South and all. She has won 12 awards. She has got state award and this and that. There is a long story. Yeah. But she is a daughter as well as my mother, or as well as my caretaker. So हमारे घर में वैसा माहौल नहीं, हम दोस्त की तरह ही रहते हैं, क्योंकि मैंने मेरे पिता से ऐसा सीखा. जब मुझे 100 रुपये चाहिए होते थे तो वो 200 रुपये देते थे. तो उनका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, हमारी सिंधी फैमिलीज़ में ज़्यादा निकला रहता था, तो मैं तबला बजाता था. तो हमारे यहाँ डिस्टेंस नहीं था. तो सेम चीज़ अब सारा करती है. वो मेरे गले में हाथ डाल के घूमती है रास्ते में, उसको मज़ा आता है दोस्त की तरह बात करने. तो वो लिबर्टी हम देते हैं. और बाकी रही बात काम की, तो वो परवरिश वैसी नहीं है. वो उनको दी जा रही है परवरिश कि ये टेम्परेरी है, ये रुकने वाला है नहीं. अभी आपके साथ है, कल को नहीं होगा. तो ये शिफ्ट भी होता है और कभी कभी नहीं होता है. तो वो अगर उनको है तो बहुत अच्छा है कि वो उसकी इज़्ज़त करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसका पैशन बना हुआ है. वो कल नहीं होगा तो उसके लिए वो दुखी नहीं हो जाएगी, वो छूट जाएगा. तो भी वो ज़िंदगी जीना इंपॉर्टेंट है. तो यही परवरिश दी जा रही है उनको. That's wonderful. So what sort of offers have you been getting, Raj? Not much. It has just released. I've got 2 offers, only 2 offers. It didn't appeal me. Now, by the grace of God, Secret Superstar has happened. There's something which has created a mark, which has made a line. So I don't want to go down in a way. I'm not so hungry for films. I'm hungry for good work. And all this while, from 18 years, I was just looking for good work. I never ever looked for quantity of work and all. Still, I believe same. When I've waited for 18 years, I can wait for 2 more 3 years. I'm not in a hurry. I have to live here, I have to die here. But doing good work is my passion, and that I will continue doing that. Now though I'm confident enough, and now though I'm determined enough to do good work, because I've got one good work. My quench, my thirst was this, that I should get one opportunity where I can prove my existence as an actor, which I, by the grace of God, by the grace of good people and all, I feel somehow has happened accidentally. Sure. So now वो जो भूख है वो भी जाती रही है कि अच्छा काम तो मिल गया. Now I have to do good work. Absolutely. अब मुझे बहुत सारी फिल्में करके मैं क्या कर लूँगा. Absolutely. वैसा नहीं है. Raj, finally, tell us how you got this role first of all, and what do you have to say about Amir, because Amir is someone that we know many people in the industry, but Amir is someone who is very respectful towards artists, irrespective of the fact कि उनका stature क्या है industry में, which is I think a very nice quality about him, which I personally have noticed that. You agree with that? Right. Actors जो अगर मतलब struggle कर रहे हैं या फिर नए actors हैं, अच्छे actors हैं, तो उनके साथ में उनका एटीट्यूड थोड़ा सा कॉन्डिसेंडिंग होता है, थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ भाई ठीक है बैठो बैठो. राइट. तो उनका मैंने नोटिस किया है कि वो एक्टर को और आर्टिस्ट को, जनरली लोगों को इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी हो. इवन जैसे ये अगर हमारे कैमरा असिस्टेंट हैं तो उनको भी अगर वो करेंगे
तो एक बार उनके घर पे हम लोग जाना था बहुत साल पहले, तो उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला और मेरा कैमरा असिस्टेंट चला गया, तो वो दीवाना हो गया कि यार आमिर खान ने दरवाज़ा खोला, एंड वो मुझसे पूछने कि आप कौन है, आपसे बात करिए। मेरा मुराद वो थी। बिल्कुल सही है, मैं समझ गया आपका सवाल। और इसके तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं आमिर सर से रिलेटेड, और मैं एक दो आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि वो पता चले। और आपने जो बात कही वो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहली चीज़, काम कैसे मिला, तो वो सवाल है। तो काम नहीं मिल रहा था और सालों से नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था वो ऐसा ही था, तो मैं मजबूरी में काम किए जा रहा था, सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। 2015 में मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम भी नहीं करूँगा, मैं करूँगा ही नहीं। मैं खुश हूँ, सारा काम कर रही है, मैं चलेगा मेरा। 2016 या 17 में सारा को मुकेश के ऑफिस में बुलाया गया फितूर फिल्म के लिए। मुकेश छाबड़ा ने फितूर फिल्म के लिए, उसमें सारा का नहीं हुआ एज की वजह से। उसमें मैं तब तक मैं अपसेट हो चुका था चीज़ों से, और मैं मुकेश के ऑफिस में अंदर नहीं गया, मैं बाहर बैठा रहा, सोफ़ा लगा हुआ कि मैं फिर जाऊंगा, मुझे ग्रीट करना पड़ेगा, हेलो बोलना पड़ेगा, हाय बोलना पड़ेगा। उस हेलो का भी वो शायद मतलब निकाल लेंगे कि काम मांग रहा है। अब एक्टर जब खाली होता है ना, तो वो यही सब सोचता है कि हेलो कैसे करूं, बोलूं नहीं बोलूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखूं। तो वो सबसे मैं और दूर हो जाना चाह रहा था कि ना मुझे बॉडी लैंग्वेज दिखानी है, ना मुझे जेस्चर दिखाना, ना पोस्चर दिखाना, मुझे रहना ही नहीं, मुझे करना ही। तो मैं सिर्फ सारा को अकम्पनी करने चला जाता था, क्योंकि माँ या बाप हम दोनों में से एक जना ज़रूर रहता है बच्चों के साथ, हमारे यहाँ वो कंडीशन है। तो मैं वहाँ गया था, उन्होंने उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुकेश को, उस दिन उसने बोला कि राज भाई ये एक ऑडिशन हमने शुरू किया, आप दे दीजिए ना 4 लाइन। उसने 4 लाइन मुझे दी थी, वो लैपटॉप वाले सीन की, वो मैंने पढ़ी, मुझे लगा मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता ये। कनेक्ट कर गया, मैं कनेक्ट कर गया। वो जैसा फिल्म में देख रहे हो ना आप, ऑलमोस्ट 19-20 मैंने किया था। उसमें सिर्फ ये था कि लैपटॉप मुझे फेंकना था, तो मैंने कागज़ जैसे उठाते कागज़ को छोड़ देते हैं, मैंने कागज़ को छोड़ दिया, मैंने फेंका नहीं। वो अद्वैत तक पहुँचा, अद्वैत को बहुत पसंद आया, वो आमिर सर तक पहुँचा, आमिर सर को बहुत पसंद आया। लेकिन वो पहला ऑडिशन था, तो सर्च तो शुरू हुई थी अभी, तो ख़त्म कैसे हो सकती है। तो 300-400 ऑडिशन और हुए, उसमें मैं टिक गया कहीं से, ऐसे टिक गया। फिर वो चेंज हो गए, मुकेश से अनमोल और अभिषेक के पास आई, तो मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, मुझे वापस ऑडिशन करना पड़ा। टचवुड मैं बच गया, कहीं कोई ऊपर वाला साथ था, तो काम ऐसे मिला। ये सफ़र यूँ शुरू हुआ। आमिर सर देखिए, ये जो चीज़ वो आपने बोले थे ना, वो एक्टर एक अलग चीज़ हो गई, ये हमारा पार्ट है, लेकिन उससे पहले हम इंसान हैं, और वहाँ पे इंसानियत का पता चलता है और वहाँ पे बड़प्पन का पता चलता है। तो ये अच्छे इंसान हैं, ये ना पुराने जन्म में कोई साधु महात्मा रहे होंगे, तो वो उनका जो साधु महात्मा का जो गुण है वो अभी तक गए नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। पूरी इंडस्ट्री भी हमारी अच्छे ही लोगों से भरी हुई है। जब अभी मैंने दिवाली पे एक्सपीरियंस किया, तो मैं गदगद हो गया कि इतने बड़े लोग और इतना प्यार, उनको ज़रूरत नहीं है आपसे मैं मिलूँ और मैं बोलूँ हाय गुड जॉब, इतना बहुत है ना मेरे लिए। मैं तो भोपाल से आया हूँ, गुड जॉब उनके बड़ा आदमी को बोले कि गुड जॉब, तो मैं मान लूँगा गुड जॉब, पर उनको मुझे गले लगाना, चूमना, प्यार करना, बाल खींचना, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बड़प्पन है, ये उदारता है, तो उसको मुझे रिसीव करना चाहिए ना। तो खैर मैं बात कर रहा था कि आमिर सर, तो ये वो जो महात्मापन, उनका जो साधुपन है, वो आया है पिछले जन्मों से। तो अब मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ था जब सारा उनके साथ एक ऐड में काम कर रही थी, तब वो मुझे जानते भी नहीं थे। और तब आप समझ सकते हैं होंगे बेहतर कि एक एक्ट्रेस के फादर के रूप में आपको क्या इज़्ज़त मिलनी चाहिए, और आपको किस इज़्ज़त की उम्मीद करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए, ना आपको मिलनी चाहिए। लेकिन एज अ ह्यूमन वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ उन्होंने बोला था कि सारा कुछ शॉट करेगी, तुम शॉट करो तो मैं तुम्हें करीना से मिलवाऊँगा, और वो बात सारा ने पकड़ ली। 4 दिन बाद फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि चलो करीना से मिलने 3 इडियट के सेट पे आ जाओ। उन्होंने हमें बुलवाया, पूरी फैमिली को 3 इडियट के सेट पे करीना से मिलवाया, बहुत इज़्ज़त दी, अपनी वैनिटी में रखा, और उसके बाद बहुत इज़्ज़त से हमें जो है रवाना किया। ये पहला एक्सपीरियंस आमिर के अच्छे होने का, आमिर सर के अच्छे इंसान होने का, जो ज़िंदगी भर के लिए छाप छोड़ गया कि ये क्या ज़रूरत है उनको एक फ़ोन, सिर्फ उन्होंने ये बोला था मुझे करीना से बात करनी है, और करीना का फ़ोन एंगेज आ रहा था, उनको वो ये बात याद रही। ये पहला एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस, जब मैं ये फ़िल्म कर रहा था, जब मेरी फाइनल वो हो गया था, तो मेरी डेट्स थोड़ी सी क्लैश करने लगी थी। मुझे साइमल्टेनियस डैडी मिल रही थी, दोनों पे काम करना था। वहाँ पे जो डेट्स मिली थी इधर उधर चेंज हुई थी, तो मैं यहाँ आया था डिस्कस करने डेट। तो आमिर सर दंगल की स्क्रीनिंग कर रहे थे, ये दूसरा एक्सपीरियंस। 50 लोगों के साथ दंगल की स्क्रीनिंग कोई कर रहा है, अभी दंगल रिलीज़ नहीं हुई, कितना प्रेशर होगा। आप उनकी मनस्थिति में जाओ तो कितना प्रेशर होगा किसी आदमी पर, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, 50 लोगों के साथ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कौन हूँ मैं? उनके ऑफिस में आया हुआ एक आदमी जिससे किसी ने फॉर्मल मिलवाया भी नहीं है, वो 50 लोगों को छोड़ के वो बोलते हैं राज कम हियर हैव लंच विथ मी। क्या ज़रूरत है उनको?
कैसे जानते हैं मुझे? अच्छा जानते भी हैं तो शो क्यों करना है? बड़प्पन का दूसरा एक नमूना। तीसरा नमूना मुझे उन्होंने फ़ोन किया फिल्म के बाद, अद्वैत को उन्होंने बोला कि किसी और एक्टर को वो बोल रहे थे, और किसी और डायरेक्टर को वो बोल रहे थे कि सालों बाद मैंने ऐसा कोई विलन देखा है, इस तरह का काम नहीं, करा। बिल्कुल, इसमें कोई और उसके बाद उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके 15 मिनट तक मुझे बोला क्या ज़रूरत है। तो ये बड़प्पन की निशानियाँ हैं। तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन। अल्टीमेटली वो एक अच्छे इंसान है और वो सब में ऊपर वाला ही देख रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उनको सब में ऊपर वाला ही दिख रहा है। तो वो सबको बराबरी से तोड़ रहे हैं। जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला तो वो ऐसे हाथ करके खड़े रहे, तो 25 कदम की दूरी थी, तो मेरे लिए तो वो बहुत लंबी दूरी हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 25 कदम तक वो थोड़ी ऐसे खड़े रहेंगे, तो मैं भागूं ऐसे करने के लिए। तो वो उनका बड़प्पन है, तो उनके बारे में क्या बोलूँ मैं, क्या नहीं, बोलूं? आपने बहुत अच्छे से आपने बहुत सरलता से आपने सारी चीज़ें आपने मतलब बयान करी, मतलब आई कुड एक्चुअली विजुअलाइज इट। तो अब ये मैं क्या उसको visualize कर इसका सकता हूँ सारी बड़प्पन, इतने बड़े लोगों से, आप इतने गुणी लोगों से जब आप मिलते हो ना, तो आप और उदार हो जाते हो और नम हो जाते हो, आप सरल हो कि किस चीज़ पे हम गुमान करें। तो अब मैं तो कर्जदार हो गया ना इनका, इन सभी लोगों का कर्जदार हो गया ना मैं, जिन से लोगों को पार्टी में मिला, जिन लोगों ने जिस तरह से मुझे रिसीव किया। तो हमारा ये परिवार फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे लोगों से भरी पड़ी है ना, अच्छे लोग। नहीं, एब्सोल्युटली इनफैक्ट मतलब आई कैन ओनली से वन थिंग दैट इट्स अ वंडरफुल स्टोरी जो आपने पूरा अपना बारे में जिस तरीके से बताया है। वो एक स्ट्रगल की कहानी है और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें किस तरीके से इन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखा होगा और कैसे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने, उसके बाद भी एक बिलीफ रखना, और फिर उसके बाद अब जब जो एक ऐसी कामयाबी मिली है कि हर कोई नोटिस कर रहा है उनको, एंड एक भूख नज़र आ रही है राज अर्जुन के अंदर दैट ही वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क, and I hope that you get a lot of good work, and I'm sure that you will, and I think your attitude is absolutely in the right place, that आप लोगों को आप अच्छी बातें आप याद रखना चाहते हैं लोगों की, and you want to look at the positive side of the industry, which is wonderful actually, and I'm sure that it will surely go in your favor, and we hope to see you in many more roles, and congratulations first of all for all the success that you're enjoying right now, and the compliments, and looking forward to much more work from you. Thank you very much. Looking forward to talking to you. Pleasure is all mine. It is my Anytime. pleasure. Thank you very much. Anytime. Thank you very much. Thank you. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Raj Arjun and you are watching Bollywood Hungama.